परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन के वचन को हम तेरे हाथ में देते प्रभु। हम मांगते हैं वचन दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु वचन क्लैरिटी के द्वारा आने दे। मेरे मुख के ऊपर तू, मेरे जीभ के ऊपर तू कंट्रोल ले प्रभु। पवित्र आत्मा, मेरे द्वारा तू बात कर, मैं नहीं, मेरे द्वारा तू बात कर। और मैं मांगती हूँ प्रभु कि वचन क्लैरिटी के में आने दे प्रभु। परमेश्वर, मुझे मदद कर कि परमेश्वर मैं सही तरीके से वचन ला सकूं और ये प्रकटीकरण हमारे जीवन में हम लागू कर सकें। और हमें मदद कर, अनुग्रह दे कि जो भी आज वचन आने वाला है उस प्रकटीकरण से चलने के लिए हम वचन पर सिर्फ सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। ओके, तो वचन की शुरुआत हो रही है। आज थोड़ा वचन बड़ा होने वाला है, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये पॉइंट आपने मिस कर दिया, आपके लाइफ में आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। ओके, और मुझे ये पॉइंट मिस नहीं करवाना है। न्यायों की पुस्तक 16:6-20। ओके, मैंने लास्ट टाइम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया था कि शिमशोन जो है वो सोरेक जो जगह है वहाँ पे जाता है और वहाँ पर उसे डेलीला करके नामक एक लड़की है, उससे प्यार हो जाता है। और वो उस जिससे वो प्यार करता है, डेलीला जो है वो फिलिस्तीन लड़की है। और फिलिस्तीन का जो शासक है ना, जो रूलर है, वो उसके पास आता है और वो कहता है कि शिमशोन को हम जाके डायरेक्टली मार नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत सारी ताकत है। तो उसके ताकत का राज क्या है वो पता कर, और जैसे तू हमें उसका राज बताएगी, उसके ताकत का राज हमें बताएगी, हम उसे पकड़ लेंगे और फिर हम उसको बंदी बना देंगे। और हर कोई व्यक्ति 1100 शेकल्स, इज़राइल में हमारे यहाँ पे रुपए होते हैं, वहाँ पे शेकल्स होते हैं, 1100 चांदी के सिक्के हम तुझे देंगे। तो अब हमारा वचन जो है वो आगे जा रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, ये लड़की इतनी चालू लड़की है, फिर भी शिमशोन उसी के साथ रहता है। और इससे हमें क्या सीखना है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, जजेस 16:6-20। So Delilah said to Samson, tell me the strength of your great, tell me the secret of your great strength, and how can you be tied up and subdued? Samson answered her, if anyone ties me with 7 fresh bow strings that have not been dried up, I'll become as weak as any other man. Then the rulers of the Philistines brought her 7 fresh bow strings that had not been dried, and she tied him with them. With men hidden in the room, she called to him, Samson, the Philistines are upon you. But he snapped the bowstrings as easily as a piece of string snaps when it comes close to a flame, so the secret of his strength was not discovered. Then Delilah said to Samson, you have made a fool of me. You lied to me. Come now, tell me, how can you be tied? He said, if anyone ties me securely with new ropes that have never been used, I'll become as weak as any other man. So Delilah took new ropes and tied him with them, and then with men hidden in the room, she called to him, Samson, the Philistines are upon you. But he snapped the ropes off his arms as if they were threads. Delilah then said to Samson, all this time you have been making a fool of me and lying to me. Tell me, how can you be tied? He replied, if you weave the 7 braids of my head into fabric on the loom and tighten it with the pin, I'll become as weak as any other man. So while he was sleeping, Delilah took the 7 braids of his head, wove them into fabric and tightened it with the pin. Again she called to him, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and pulled up the pin and the loom with the fabric. Then she said to him, how can you say I love you when you won't confide in me? This is the 3rd time you have made a fool of me, and you haven't told me the secret of your great strength. With such nagging, she prodded him day after day until he was sick to death of it. So he told her everything. No razor has ever been used on my head, he said, because I have been a Nazirite dedicated to God from my mother's womb. If my head were shaved, my strength would leave me and I would become as weak as any other man.
When Delilah saw that he had told her everything, she sent a word to the rulers of the Philistines. Come back once more, he has told me everything. So the rulers of the Philistines returned with the silver in their hands. After putting him into sleep on her lap, she called someone to shave off the 7 braids of his hair, and so he began to subdue him, and his strength left him. And then she called, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. ठीक है, ये स्टोरी क्या है मैं बताती हूँ. स्टोरी ऐसा हुआ कि डेलीला को एक काम सौंपा गया था, और काम फिलिस्तीन के रूलर जो शासक है उसने काम क्या दिया था, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ शिमशोन ने बहुत लड़ाई झगड़े किए थे, तो फिलिस्तीन का जो शासक था, अथॉरिटी का जो आदमी था, उसे कैसे भी करके शिमशोन को पकड़वाना था और उसे मार डालना था. तो इसलिए शिमशोन एक बहुत ताकतवर व्यक्ति था और उसे कोई ऐसा मार नहीं सकता था क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ था. तो अब क्या हुआ, डेलीला को डेलीला शिमशोन से पहली बार पूछती है कि तू मुझे बता कि तेरी जो ताकत है वो किस में है. तो वो कहता है कि अगर मेरे बाल ना कोई बांधता है नए रस्सी से कोई मेरा बाल बांधता है तो मैं मतलब मेरी ताकत चली जाएगी. तो डेलीला क्या करती है, उसे अपने गोद में सुलाती है और उसके बाल बांधती है नए रस्सी से. फिलिस्तीन के जो लोग हैं ना वो नए रस्सी उसे लाकर देते हैं और वो बाल बांधती है. धनुष्य, ये इसको बोलते हैं धनुष्य रस्सियाँ. उसने यहाँ पे लिखा है धनुष्य रस्सी. अगर वो कहता है कि अगर धनुष्य रस्सी से मेरे बाल बांध देना तो मेरी ताकत चली जाएगी. तो वो क्या करती है, धनुष्य रस्सी से उसके बाल बांधती है. ठीक है. एंड एक मिनट, मैं एक वापस आपको एक ये बोल रही हूँ. हाँ, वो क्या करती है, धनुष्य रस्सी से उसके पूरे बदन को बांधती है. ठीक है, जब वो सोया है तब. और बाद में बोलती है कि फिलिस्तीन लोग छुपते उसके घर पे, और वो बोलते हैं कि फिलिस्तीन लोग आए हैं. तो वो जैसे उठता है ना, वो सिर्फ हाथ को ऐसा करता है और अपने आप उसमें इतनी ताकत है कि वो रस्सी, जो इतनी नई रस्सी, एक रस्सी को कोई, आपको पता है फांसी लगाते वक्त रस्सी लगाई जाती है, वैसे रस्सी जो खराब नहीं हुई है वो रस्सी से उसे बांधा गया था. पर जैसे वो उठा उसने रस्सियों को ही तोड़ दिया. समझ में आ रहा है. तो डेलीला को बुरा लगता है कि यार तूने जो मुझे पहली बार बताया कि नई रस्सी से बांधना है, तो ये तूने मुझे झूठ बोला. तू बोलता है मुझसे प्यार करता है और तू मुझसे झूठ बोल रहा है, मतलब तू मुझसे प्यार नहीं करता. तो वापस से वो पूछती है कि चल अब मुझे बता कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कि कौन से कैसे अब मैं क्या करूं, मैं कौन से रस्सी से बांधूं तुझे, तो कैसे होगा. तो बोलता है कि देख, अब धनुष्य रस्सी मत ले, नई रस्सी ले, नई रस्सी जिसमें कोई खराबी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी रस्सी ले और मुझे बांध. और वो क्या करती है, वो उसे सुलाती है, वापस से उसे बांधती है, और फिलिस्तीन लोग जो है वो आके छुपते हैं. और वो कहती है, उसको बांधने के बाद वो कहती है कि शिमशोन, फिलिस्तीन लोग आए हैं. उसे क्या लगता है कि ये रस्सी बांधने से शिमशोन पकड़ा जाएगा, उसकी ताकत निकल जाएगी. बट होता क्या है, जैसे वो बोलती है शिमशोन फिलिस्तीन लोग आ रहे हैं, वो वापस उठता है और वो वापस झटकता है, वो रस्सियाँ टूट जाती है. और ये रस्सियाँ कोई मामूली रस्सी नहीं है, ये रस्सियाँ बहुत ही गहरी रस्सी होती है ना, एकदम टाइट वाली, वो रस्सियाँ है. बट शिमशोन में इतनी ताकत है कि वो जस्ट ऐसा करता है और रस्सियाँ टूट जाती है. बाद में वो बोलती है कि नहीं यार, तू मुझे बोलता है कि तू मुझसे प्यार करता है और तू मुझे झूठ बोल रहा है, ये दूसरी बार तूने मुझे झूठ बोला. एक्चुअली उसका मन क्या है, पैसों में है. उसे शिमशोन से कोई मतलब नहीं है, ना लेना देना है. उसे पता है कि फिलिस्तीन लोग उसे चांदी के सिक्के देने वाले हैं. तो अब तीसरी बार वो क्या करती है, अब वापस से वो पूछती है शिमशोन को. देखो कितनी बार नैगिंग, ये पॉइंट में हम आने वाले हैं पर बाद में, आज नहीं. तीसरी बार वापस से पूछते हैं कि शिमशोन, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मुझे सच बता कि तू कैसे, तेरी ताकत जाएगी. हाँ, अब शिमशोन तीसरी बार जब वो पूछती है तो शिमशोन बोलता है कि मेरे ना जितने भी बाल है, उस बाल के अगर तू 7 चोटियाँ बनाएगी, 7 चोटियाँ,
मतलब इतने सारे बाल है ना, इसके बाल थोड़े थोड़े लेकर इसमें 7 चोटी बना। ओके, 7 चोटी अगर तू बनाएगी तो मेरी ताकत चली जाएगी। तो क्या करती है वो, शिमशॉन को अपने लैब पे लेटा देती है, मतलब मांडीवर झोपवते। ओके, और शिमशॉन के 7 चोटी बांधती है वो, और वो बोलती है कि शिमशॉन फिलिस्तीन आ गए। शिमशॉन वापस उठ जाता है। ओके, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये भड़क जाती है, ये बोलती है कि शिमशॉन तू मुझसे प्यार करता है और तूने मुझे 3 बार झूठ बोला, वाई डोंट यू कन्फाइड इन मी। मतलब वो कहती है कि अगर तू मुझसे प्यार करता है और तू मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मानता है तो तुझे मुझे सच बोलना चाहिए ना। बट देखो, हर कोई जो बंदा है वो उसका जो उद्देश्य है वो सही है, आपके साथ रहना ज़रूरी नहीं है। वो शिमशॉन के साथ इसलिए रह रही थी उसकी गर्लफ्रेंड बन के, ताकि उसको पैसा मिल सके। ओके, और अब क्या होता है, वो पूछती है, अब वो बोलती है कि नहीं शिमशॉन मुझे वापस बता, सच बता कि क्या करने से तेरी ताकत जाएगी। और शिमशॉन इतना परेशान हो जाता है बार बार उसके पूछने से, कि वो बोलता है कि देख मैं जन्म से नाजरी हूँ, समझ में आ रहा है, मैं जन्म से नाजरी हूँ, मेरे सिर पर किसी ने वस्त्रा नहीं चलाया है, नोबडी हैज शेवन माय हेड। ओके, अगर कोई मेरे बाल काट देता है तो मेरी ताकत चली जाएगी, समझ में आ रहा है। ये पता चलने के बाद वो क्या करती है, शिमशॉन को वापस लेटा देती है अपने ऐसे हाँ थाइस पे, लैप पे लेटा देती है, और वो फिलिस्तीन लोगों को बुलाती है और बोलती है कि इसके बाल काटो। फिलिस्तीन लोग इसके बाल काट देते हैं, और जब ये पुकारती है शिमशॉन फिलिस्तीन लोग आए हैं, शिमशॉन को लगता है वापस से उसके पास ताकत है हैंडल करने के लिए, पर जब वो उठता है तो वो उसके पास ताकत नहीं रहती है। वो लोग उसे बांध कर लेकर जाते हैं और उसकी ताकत निकल जाती है। उसकी ताकत किस में थी, बालों में। और जब उसके बाल काटे जाते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति भी उसके यहाँ से चली जाती है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से अब मैं हिंदी में और मराठी में पढ़ रही हूँ। अभी स्टोरी समझ में आ गई ना, अभी हिंदी और मराठी में पढ़ रही हूँ। शास्ते 16:6-20। मग दलीला शिमशोनाला म्हणाली, तुझ्या सामर्थ्याचे रहस्य तरी काय, तुला ठाण बंद करून हतबल करायचे तरी कसे एखाद्याने। शिमशोन म्हणाला, नव्या कोऱ्या पुरत्या न वाळलेल्या अशा 7 धनुष्याच्या दोऱ्यांनी मला बांधले तर ते शक्य आहे, कोणी हे केले तर माही 4 चौघांसारखा दुर्बळ होईल, मीही 4 चौघांसारखा दुर्बळ होईल। तेव्हा पलिष्ठी अधिकाऱ्यांनी दलीलाला 7 नव्या प्रत्यांचा आणून दिल्या आणि अजून पुरत्या वाळलेल्या देखील नव्हत्या। दलीलाने त्यांना शिमशोनाला जखडून टाकले। दलीलाने त्यांनी शिमशोनाला जखडून टाकले म्हणजे दोरीने बांधले। शेजार खोलीत काही माणसे लपून बसली होती। दलीला शिमशोनाला म्हणाली, शिमशोन पलिष्ठी लोक आत्ता तुला ताब्यात घेणार आहेत। पण शिमशोनाने त्या प्रत्यांचा सहज जगत्या तोडून टाकल्या। जाळलेल्या सुतळीची राख पडावी इतक्या सहजपणे त्या गळून पडल्या, म्हणजे एवढ्या टाईट, पण त्याने फक्त नुसतं असं केलं आणि ते तुटल्या। अशा प्रकारे पलिष्ठींची काही शिमशोनच्या सामर्थ्याचे रहस्य समजले नाही। तेव्हा दलीला त्याला म्हणाली, तू माझ्याशी खोटे बोललास, मला फसवलेस, खरे काय ते मला सांग, तुला कसे बांधून घालता येईल। शिमशोन म्हणाला, मला नव्या कधीही उपयोगात न आणलेल्या दोरखंडांनी मला जखडायला हवे, तसे केले तर मी अगदीच हतबल होऊन जाईन। नवी रस्सी। तेव्हा दलीलाने नवे कोरे दोरखंड आणून त्याला
बांधले. दुसऱ्या खोलीत काही जण लपलेले होते. दलीला मोठ्याने म्हणाली, शिमशोन, पलिष्टी लोक तुला पकडायला आले आहेत. पण यावेळी शिमशोनाने ते दोरखंड सुतळीसारखे तटकन तोडून टाकले. परत उठला, सुतळीसारखे तोडून टाकले. सुतळी कशी असते माहिती ना, सुतळी किती टाईट असते, सुतळीला तोडू शकतं कोणी नाही. यावर ती त्याला म्हणाली, बघ पुन्हा तू खोटं बोललास, मला बावळट ठरवलेस. आता तर सांग तुला जखडून टाकायची युक्ती. शिमशोनाने सांगितले, माझ्या केसांचे 7 पेड करून ते मागच्या ताण्यावर करकचून आवळले तर ते शक्य आहे. शिमशोनाला झोप लागल्यावर दलीलाने हातमाग वापरून त्याच्या डोक्यावरील 7 पेड विणून तिने तंबूची खुंटी ठोकून माग जमिनीवर पकरावला. मग ती त्याला म्हणाली, शिमशोन, पलिष्टी लोक तुझ्या ताबा घ्यायचा सज्ज आहेत. त्यावर शिमशोनाने खुंटी मग हे सगळे सहजगत्या उपटून टाकल्या. म्हणजे तिने काय केलं, ते 7 वेण्या बांधलेल्या तिने ते गाडून टाकले, याच्यावर ठेवले, म्हणजे खिळा मारला एक. आणि तो उठायला जेव्हा गेला तेव्हा त्याने उपटून टाकले. त्याला काहीच फरक नाही पडला, त्याच्या केसातनं त्याने उपटून टाकले ते. तेव्हा दलीला त्याला म्हणाली, माझ्यावर तुझे प्रेम आहे असे म्हणतोस आणि एवढंही विश्वास टाकत नाहीस ना. आपले गुपित तू फोडायला तयार नाहीस. माझ्या फजिती करायची ही तुझी 3री वेळ. तुझ्या प्रचंड सामर्थ्याचे गुपित तू अजूनही मला सांगितले नाहीस. तिने मग त्याचा मागे लकडाच लावला. तिच्या या रोजच्या कटकटीमुळे मरण बरे असे त्याला वाटू लागले. शेवटी त्याने तिला सर्व काही सांगून टाकले. तो म्हणाला, आजता गायत कधीही माझे केस कापलेले नाही. माझ्या जन्माआधीच मला परमेश्वराला वाहिलेले आहे. तेव्हा आता माझे मुंडन केले तर माझा शक्तिपात होईल व मी 4 चौघांसारखा सामान्य होईल. माझे केस कापून टाकले, मुंडन केलं, शेव केलं, तर मी 4 चौघांसारखा होईल. जैसे आम लोग होते वैसे मैं हो जाऊंगा. आपल्या मंडीवर पडल्या शिमशोनाला झोप लागली. आपल्या मांडीवर पडल्या शिमशोनाला झोप लागली आणि झोप लागली आहे याची खात्री पटल्यावर तिने एकाला बोलवले. त्याच्याकडून शिमशोनाच्या डोक्यावरील 7 बटांचे तिने मुंडन करवले. अशा रीतीने तिने त्याला अगदी हतबल करून टाकले. शिमशोन गलित गात्र आणि पराभवास योग्य झाला. त्याची शक्ती त्याला सोडून गेली. मग ती त्याला म्हणाली, शिमशोन, पलिष्टी लोक तुला जेरबंद करायला आले आहेत. तेव्हा तो जागा झाला. त्याला वाटले, पूर्वीप्रमाणेच यावेळी मी माझी सुटका करून घेऊ शकेन. पण परमेश्वर आपल्याला सोडून गेला आहे याची त्याला कल्पना नव्हती. कळलं? तर हिंदीमध्ये वाचते आणि मग त्याच्यानंतर आपण वचन घेऊया. हिंदीमध्ये काय आहे शास्त्र? नाही हो, नाही हो. न्यायियों की पुस्तक 16:6 ओके. न्यायियों की पुस्तक 16वां अध्याय 6 से 20. तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता दे कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किसी रीति से कोई तुझे बांध कर दबा
दबा रख सके। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई तातों से बंधा जाऊँ जो सुखाई नहीं गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य हो जाऊंगा। तब पलिश्ती के सरदार दलीला के पास ऐसी नई 7 ताते ले गए जो सुखाई न गई थी और उनसे उसने शिमशोन को बांधा। उसके पास तो कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब उसने तातों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग में छूते ही टूट जाता है और उसके बल का भेद न खुला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसे कोई नई रस्सियों से जो किसी काम न आई हो कसकर बांधा जाऊँ तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई रस्सियों को लेकर और उसको बांध कर कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। किंतु मनुष्य तो उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत की नाई अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तो तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू कोह से काहे से बन सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लटे ताने में बुने तो बन सकूंगा। सो उसने उसकी खूंटी से जकड़ा और तब उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरने में से उखाड़कर उसने ताने समेत ले गया। तब दलीला ने उससे कहा, मतलब 7 चोटियाँ बनाई थी और 7 चोटियों को एक साथ करके का खिला ठोका था। और उसने कहा, शिमशोन, फिलिस्ती लोग आ गए। तो उसने क्या किया, वो खिला निकाल दिया, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। सो जब उसने हर दिन तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने ये 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बाल का भेद क्या है। सो जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसने नाक में दम आ गया, उसके नाक में दम आ गया, मतलब वो थक गया। इतनी बार वो पूछती गई कि बता बता बता। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उसे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्ती के सरदारों के पास कहला भेजा कि अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्ती के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। देखो, पलिश्तीनी सरदार ने क्या किया, पैसे लेके दलीला के पास पहुंचे। तब उसने उसे अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटे मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। 7 लटे क्या किया है, शेव कर दिया, उसको पूरा टकला कर दिया। उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि उसकी ताकत किस में थी, बालों में थी। जब उसको पूरा टकला कर दिया तो उसकी ताकत शक्ति चली गई। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। समझ में आ गया वचन? अब यहाँ से हमें सीखना क्या है, आप पॉइंट लिख के लो। डोंट बी अराउंड डिसलॉयल पीपल। पॉइंट आहे, डोंट बी अराउंड डिसलॉयल पीपल। विश्वासघाती लोकांच्या आसपास राहू नका।
विश्वासघाती लोकांच्या आसपास राहू नका. डोंट बी अराउंड डिसलॉयल पीपल. विश्वासघाती लोगों के आसपास मत रहो. विश्वासघाती लोगों के आसपास मत रहो. हो गया. विश्वासघाती लोगों के आसपास मत रहो. डोंट बी अराउंड डिसलॉयल पीपल. ठीक है, चालू करूं. देखो, शिमशोन जो था, शिमशोन को 3 बार डेलीला ने फंसाने की कोशिश की. पहली बार उसे कहा तो शिमशोन को डेलीला ने पूछा कि बता तेरे शक्ति का रहस्य क्या है. तो उसने बोला नई धनुष डोरी से बांध मुझे, तो मैं मेरी ताकत निकल जाएगी. उसने उसे बांधा, डेलीला ने उसे बांधा और फिलिस्ती लोगों को बुलाया, पर ये उठ के उसने डोरी तोड़ डाली. ठीक है. दूसरी बार उसने डेलीला ने पूछा कि बता तेरी शक्ति का रहस्य क्या है. उसने बोला नई रस्सी से मुझे बांध. पहले धनुष रस्सी, फिर अब नई रस्सी से बांध, तो मेरी ताकत चली जाएगी. और नई रस्सी से वो बांधती है, वो उसे सुलाती है और वही बांधती है. अब ये सारी चीज़ें शिमशोन को पता है कि डेलीला ही बांध रही है उसे. फिर वो उठता है, वो डोरी तोड़ता है, वापस से वो खड़ा हो जाता है. डेलीला को वापस से गुस्सा आ जाता है. क्यों? क्योंकि यार इसका सच अभी पता नहीं चला है, पैसे नहीं मिलेंगे. तीसरी बार पूछती है कि अब मैं क्या करूं. तो बोलता है कि मेरे बालों के 7 चोटियां बना और एक चोटी करके उसे खूंटे में डाल के ज़मीन में गाड़ दे, तो मेरी ताकत निकल जाएगी. वो क्या करती है, वो सुलाती है उसे, उसकी 7 चोटियाँ बांधती है पूरे बालों की, और फिर एक चोटी लेके खिला मारती है. कहाँ? ज़मीन पर, ताकि वो उठ ना सके. और तब वो बोलती है कि अरे शिमशोन, फिलिस्तीन आ गए. और वो उठता है और वो खिला निकाल देता है. और ये जो औरत है डेलीला, वो चिल्लाने लगती है उसके ऊपर कि तू मुझे बोलता है कि तू मुझसे प्यार करता है, पर तू मुझे सच नहीं बता रहा है. अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है कि शिमशोन को पता था कि ये औरत सही नहीं है. ये औरत उसे पकड़वाने का प्लान कर रही है. ये खुद डोरी ला रही है, कहीं से अरेंज कर रही है, ये उसको बांध रही है. और जब वो उठ रहा है तो उसकी ताकत है उसमें, और वो डोरियों को तोड़ रहा है. पर तेरे को इतनी अक्ल नहीं है कि भाई जिसको तू बता रहा है सारे सीक्रेट्स, जिसको तू ऐसे बता रहा है, वही तेरे को बांध रही है. समझ में आ रहा है? जिससे तू प्यार करता है वो तुझे ही उल्लू बना रही है. 3 बार उसने तुझे उल्लू बनाया, तुझे सुलाया, और वही खुद 2 रस्सी बांध रही है तुझे. तो एक पर्सन आगाह होता है कि नहीं कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, यार ये तो मेरे ही डंका बजाने के पीछे लगी पड़ी है. तो अपन क्या करेंगे अगर हमें ऐसा पता लगता है कि अगर मैं जिससे प्यार करता हूँ तो ये आदमी सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उससे दूर हो जाएंगे कि नहीं. पर शिमशोन, मैंने कहा ना, शिमशोन को पता था कि डेलीला जो है वो लॉयल नहीं है, वो विश्वासु नहीं है. बट फिर भी क्योंकि शिमशोन को ये भी पता था कि वो उसके जीवन के पीछे पड़ी है. ओके. पर शिमशोन कहाँ पे फंस गया? मैंने कहा ना, औरतें उसका वीक पॉइंट था. ओके. जहाँ पर बात वीकनेस के, वीक पॉइंट था उसका, औरतें आ गई, वीक पॉइंट. वो औरतों को छोड़ नहीं पाता था. बाकी वो कितने भी लोग बड़े बड़े तगड़े लोग उसके सामने लाओ, उनको वो मारेगा, बाकी सब करेगा. पर जहाँ पे औरतों की बात आती थी, उसका फ्लैश, उसका जो शरीर है, उसकी अटैचमेंट जो है, अपने मन में जो उसकी अटैचमेंट होती थी ना, वो अटैचमेंट से वो दूरी नहीं कर पाता था. ओके. तो कई बार आप फंस सकते हो अगर शरीर में आप स्ट्रांग हो. देखो, मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करो, ये आपके लाइफ को बचा सकता है. कई बार आप शरीर में अगर स्ट्रांग हो, आप में ताकत है, पर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, और आप इमोशनली मतलब मानसिक रूप से अगर आप स्ट्रांग नहीं हो और लोगों को दूर नहीं कर सकते,
तो आप फंस सकते हो। हालेलुया। देखो शिमशोन में इतनी ताकत थी कि उसको पता था कि मैं कुछ भी बोलूंगा, मैं उठ के रस्सियों को तोड़ दूंगा। बाबा तू रस्सियों को तो तोड़ देगा, पर जो बाजू में है ना तेरे, वो शातिर दिमाग वाली है, वो तेरे अंदर से सच उगलवाएगी। और उसने उगलवाया, उसने बोला अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू मुझे बता तेरा रहस्य क्या है। और रोज रोज पूछ पूछ के उसको इतना पागल किया कि शिमशोन ने तंग आकर उसे बता दिया। मैंने कहा ना, शिमशोन को ताकतवर था पर अक्ल उसे नहीं थी। शिमशोन के अंदर ताकत थी पर अक्ल उसके अंदर नहीं थी। शिमशोन जानता था कि भाई ये लड़की मेरे भले के लिए नहीं है, ये पैसों के लिए है, बट फिर भी उसके साथ चिपके रहा। क्यों? क्योंकि उसे इमोशनली पार्ट वेज करने को नहीं हो रहा था। इमोशनली कई बार आपको इम्पोर्टेंट है कि जब आप एक व्यक्ति को लोकेट करते हो कि भाई ये व्यक्ति सही नहीं है और ये आपका फ़ायदा उठा रहा है, उन लोगों के साथ ज़्यादा घुलो मिलो मत, दूर रहो उनसे। अगर आप ऐसे व्यक्तियों के साथ घुलोगे मिलोगे, वो कभी ना कभी आपका फ़ायदा उठा के चले जाएंगे और बाद में आपको समझेगा कि यार ये इसने मेरा फ़ायदा उठा के चले गए। आपको पता है परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, तोड़ दो फ्रेंडशिप। और वो लोग चाहे कई बार ऐसा हो सकता है कि वो आपके पेरेंट्स भी चालाक हो सकते हैं, आपके दोस्त चालाक हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार चालाक हो सकते हैं, आपका स्पाउस चालाक हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो लोग आपके साथ लॉयल नहीं है तो उनके साथ संबंध मत रखो, क्योंकि वो लोग आपके जान पे भी आ सकते हैं। क्या हुआ पता है आगे? जब डेलीला को उसने कहा कि मैं नाजरी हूँ, बचपन से मुझे नाजरी रखा गया है, मतलब मेरे बाल कभी काटे नहीं गए हैं, जिस दिन मेरे बाल काटे जाएंगे मेरी ताकत चली जाएगी। उसने उसे सुलाया, एक बंदे को बुलाया, उसका मुंडन करवाया, वो पूरा टकला हो गया। जब वो उठा, उसको बोला शिमशोन फिलिस्ती लोग आए हैं। जब वो उठा, उसने देखा कि उसकी ताकत चली गई है और वो नॉर्मल लोगों की तरह था। और उन्होंने क्या किया पता है? वो फिलिस्ती लोगों ने उसे पकड़ कर लेकर गए और उसकी आंखें फोड़ डाली। ये अगले वचन में आ रहा है, उसकी आंखें फोड़ डाली उन्होंने, उसकी आंखें नहीं रही, उसे अंधा कर दिया। अब सोचो, इतना ताकतवर व्यक्ति, उसकी आंखें कौन फोड़ सकता है? अगर तुम इमोशनली, खली को देखा है, खली को, खली 7 फुट WWF में था, अपना इंडिया से गया था, उसके साथ लड़ाई करने कौन जाएगा? उसकी इतनी हाइट है, उसका एक हाथ पड़ेगा तो मर जाए। हाँ, पर अगर परमेश्वर के ताकत से गए तो हम उसको भी हरा सकते हैं, क्योंकि डेविड ने गोलियत को हराया था, राइट? पर अगर ऐसे तो खली को कोई मार नहीं सकता, राइट? बट खली अगर इमोशनली, मैं खली के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रही हूँ जो इमोशनल है, जो इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है, ओके? जो अपने मानसिक रूप से अगर बुद्धिमान नहीं है, ऐसे लोग, तो वो लोग गलत व्यक्ति के साथ भी अपना रिश्ता निभाते रहेंगे, चाहे वो कितना भी उससे झूठ बोले। उसे पता भी होगा कि ये सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो भी उसके साथ निभाएंगे। तो परमेश्वर बोल रहा है ऐसा मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसे गलत व्यक्ति के साथ रहोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। और आगे चल के यही चीज़ हुई। आप अगला हफ्ते में जो स्टोरी लेने वाली हूँ, तब आपको पता चलेगा कि शिमशोन की आंखों फोड़ डाली, शिमशोन अंधा बन गया, और शिमशोन को बाद में शिमशोन मर भी गया। तो दलीला ने उसे पकड़वाया, उसके वजह से वो हुआ है, राइट? तुम्हारे लिए इस इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सिर्फ ताकत इधर नहीं चाहिए, डोले शोले नहीं सिर्फ बढ़ाने हैं, इमोशनली भी स्ट्रांग होना है आपको। इमोशनली मतलब मानसिक रूप से भी स्ट्रांग होना है। जब परमेश्वर आपको बोलता है कि भाई ये लड़की सही नहीं है, तो तोड़ दो रिलेशन उसके साथ रिलेशन मत रखो। वो लड़की सही नहीं है, वो लड़का, अगर परमेश्वर बोल रहा है वो लड़का सही नहीं है। अगर एक लड़का शादी के लिए अगर आप प्रेयर कर रहे हो या एक फ्रेंडशिप के लिए प्रेयर कर रहे हो और परमेश्वर आपको बोलता है
कि ये लड़का जिस लड़के के साथ, अभी कभी कभी होता है ना लड़के लोगों को जो लड़की अच्छी लगती है, परमेश्वर जानता है उसका नेचर क्या है, या लड़कियों को जो लड़का अच्छा लगता है परमेश्वर जानता है उसका नेचर क्या है, राइट। तो कई बार हम इतने इमोशनल हो जाते हैं, 2 बार 2 बातें उसने अच्छी क्या कर डाली हमारे साथ, ओके। कई बार क्या होता है, लड़के थोड़ा सा प्यार से बातें करने लगे, लड़कियां फिसल जाती है, ओके। या कभी लड़कियों ने प्यार से बातें की तो लड़के फिसल जाते हैं। पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये करना है कि आपको परमेश्वर से पूछना है कि भाई ये लड़की या लड़के के साथ मैं फ्रेंडशिप करूं या ना करूं, इस लड़की या लड़के के साथ मैं शादी करूं या ना करूं। कोई भी आपके ऑफिस में हो, आपके रिलेटिव में हो, आपके फैमिली में हो, कहीं पे भी हो, आपको परमेश्वर से पूछना है कि मुझे इनके साथ रिश्ता रखना है या नहीं रखना है। अगर आपको परमेश्वर बोलता है नहीं रखना है, छोड़ दो उनको। हाँ देखो, कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आपने उनको छोड़ दिया तो उनको शायद से रियल में पश्चाताप भी हो सकता है, ओके, जो उन्होंने किया है उसके लिए, कि भाई मैंने गलती की और मेरे को इसका पश्चाताप है, मैं आगे ये नहीं करूँगा, तो वापस तुम उनके साथ रह सकते हो। बट अगर कोई बंदा बार बार आपको उल्लू बना रहा है और परमेश्वर आपको बोल रहा है कि इस लड़की के साथ रिश्ता मत रखो या इस लड़के के साथ रिश्ता मत रखो, आपके फ्रेंड्स में भी परमेश्वर आपको वार्न कर रहा है कि इस लड़की या इस लड़के के साथ रिश्ता मत रखो, तो मत रखो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं और उसमें तुम भी फंस सकते हो और तुम्हारी जान जा सकती है। अगर वो लड़का ड्रग्स में है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें लग रहा है कि अरे यार मैं तो कॉलेज का फ्रेंड है, मैं तो उसके साथ घूमता हूँ, ये करता हूँ, तुम्हें क्या पता है वो ड्रग्स सप्लाई करता है। और ड्रग्स सप्लाई करने में अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो तुम्हारा नंबर उसके फ़ोन में होगा, पुलिस तुम्हें भी पकड़ के लेकर जाएगी। बता इसके बारे में तू क्या जानता है? समझ में आ रहा है? तुम अब परमेश्वर से पूछना सीखो, परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछो कि परमेश्वर क्या मैं इसके साथ दोस्ती करूं, क्या मैं इसके साथ शादी करूं या ना करूं। परमेश्वर अगर बोलता है कि ये लड़की के साथ शादी मत कर तो मत कर। यहाँ पर क्या हुआ, शिमशोन ने, देखो शिमशोन का प्रॉब्लम ये था ना कि वो ना शारीरिक रूप में, पवित्र आत्मा में वो नहीं चलता था, वो शरीर की लालसा पूरी करता था। शरीर में जो उसे अच्छा लगता है ना, जो उसके मन को अच्छा लगता है वो करता था। पर पवित्र परमेश्वर क्या उसे बोल रहा है ना, वो उसके बारे में नहीं सुनता था। कितने बार हमने देखा है, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भाई दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी और औरत के साथ शादी मत कर, दूसरे जाति की, फिर भी उसने करने किया। दलीला भी फिलिस्ती थी, फिर भी वो गया, वहाँ पे उसकी गलती हुई कि नहीं? दलीला एक फिलिस्तीन लड़की थी, क्या जरूरत थी उसके प्यार में पड़ने की? देखो परमेश्वर हमें पहले ही वार्न करता है वचन के द्वारा, कि वचन में पहले ही बोला है कि यार तेरे जाति को छोड़ के दूसरे जाति की लड़की के साथ शादी मत कर। अगर ये बोलता कि नहीं मुझे दलीला के साथ नहीं करे, भले वो कितनी भी सुंदर हो, मुझे नहीं जाना है, मैं परमेश्वर जो दिखाएगा उस लड़की के साथ शादी करूँगा, तो ये होता नहीं होता। आपको पता है शिमशोन की मिनिस्ट्री आधे अधूरी हो गई। शिमशोन उस वक्त जाना नहीं चाहिए था, शिमशोन को उस वक्त मरना नहीं चाहिए था, पर शिमशोन के बेवकूफ़ी के वजह से उसकी मिनिस्ट्री आधी हो गई। परमेश्वर तुम्हें 50 साल तक यूज़ करना चाहता है, बट अगर तुमने परमेश्वर की बात नहीं मानी और तुम्हारे बेवकूफ़ी भरी चीज़ें किया तो तुम्हारी मिनिस्ट्री परमेश्वर 25 साल कर देगा। अच्छा लगेगा तुम्हें? 50 साल परमेश्वर के लिए यूज़ हो सकते हो और अब परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हो, परमेश्वर बोलेगा भाई ये मेरे पीछे नहीं चल रहा है, उसके मूर्खता के वजह से ये अपनी जान खो बैठेगा। समझ में आ रहा है? तो आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके माँ बाप भी डिसलॉयल हो सकते हैं आपसे, दूर रहो उनसे। अगर कोई भी माँ बाप हो या अथॉरिटी फिगर हो, बड़े लोग हो, जो आपको परमेश्वर के खिलाफ जाकर कुछ करने को कहते हैं, दूर रहो ऐसे लोगों से। दलीला को क्या चाहिए था? पैसे। और जब उसने शिमशोन को पकड़वाया, उसने सारे लोगों से 1100 चांदी के सिक्के पैसे लिए, दलीला ने। देखो जो तुम्हारे साथ रहता है ना, कई बार ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे अच्छे के लिए है,
उसको उसमें से कुछ फायदा हो रहा है इसलिए भी वो रह सकता है। समझ में आ रहा है? बट कब वो फायदा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। देखो, अगर परमेश्वर तुम्हें बता रहा है कि ना ये लड़की के साथ शादी मत कर, तो मत कर। वो डिसलॉयल है। परमेश्वर एक बार उसकी, देखो, परमेश्वर उसकी गलती तुम्हें एक बार बताएगा, गलती नहीं, उसका झूठापन एक बार तुम्हें बताएगा। वो झूठापन दिखने के बाद आपको अलर्ट होना है कि यार परमेश्वर ने मुझे बताया है, इसका झूठापन बाहर आ रहा है। शिमशोन ने पहली बार देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, फिर भी वो उसी के साथ चिपके था। वो ऐसा नहीं कि भाई तू, अरे यार तू मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बोलती है ना, तो तू ही मुझे डोर से कैसे बांध रही है? मेरे शत्रुओं को तू कैसे मदद कर रही है? तेरी ऑनेस्टी कहाँ गई? तेरी लॉयल्टी कहाँ गई? तेरी ईमानदारी कहाँ गई? है कि नहीं? हम शादी ऐसे किस व्यक्ति के साथ करते, प्यार किस व्यक्ति के साथ करते हैं? जो लॉयल है। अगर उसमें लॉयल्टी नहीं है तो फायदा क्या है उसके साथ रहने का? अब शिमशोन का प्रॉब्लम ये था कि शिमशोन शरीर से तो तगड़ा था पर इमोशनली वीक था। और परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि बी इमोशनली वाइज, इमोशनली इंटेलिजेंट, मानसिक रूप से इंटेलिजेंट होना सीखो। देखो, लड़कियां जो है उनके पास ताकत नहीं है, बट अगर उनके पास खोपड़ी भी नहीं होगी ना, या उनके पास अक्ल भी नहीं होगी ना, तो वो कहीं की नहीं रहेगी। अगर एक लड़का उसको तकलीफ दे रहा है और वो उसी लड़के के साथ चिपके रह रही है, तो वो तो कहीं की नहीं रहेगी, बराबर की नहीं? इसलिए होशियार हो जाओ। आज परमेश्वर बोल रहा है ऐसे लोगों के साथ अपना रिश्ता तोड़ दो जो लॉयल नहीं हैं, जो विश्वासु नहीं है। देखो, परमेश्वर के ऊपर जब तुम विश्वास रखते हो कि परमेश्वर मुझे अच्छा देगा, अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते हो, तुम बोलते हो नहीं। अगर शिमशोन ने ऐसा बोला होता कि नहीं, दलीला मेरे जात की नहीं है, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा, मेरे को जो परमेश्वर दिखाएगा मैं उसी लड़के के साथ शादी करूंगा, क्या वो आज मरता? नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 1:17 में कि हर अच्छी भली वस्तु परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। वचन देखो, याकूब की पत्री, जेम्स 1:17। जेम्स 1:17, 1:17। देखो, हर कोई चीज अगर परमेश्वर की ओर से है, अगर परमेश्वर वो चीज तुम्हें दे रहा है तो वो बेस्ट है। अपने मन की करने मत जाओ। चूना लगाएगी वो लड़की, पैसे लूटेगी। अगर ऐसे लड़के जो परमेश्वर तुम्हें नहीं दिखा रहा है और उस लड़की के साथ अगर तुम जाते हो, तुम्हारी एनर्जी, रिसोर्सेस, पैसा सब वाट लगाएगी और तुम्हें खड्डे में डाल के खुद बाहर आएगी और तुम्हें खड्डे में डाल देगी। उन ऐसी लड़कियों को ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होता है कि भाई ये बॉयफ्रेंड है, ये तुमसे पैसे मिल रहे हैं, बस उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसीलिए तुम्हें, मैं दोनों को बोल रही हूँ, लड़के और लड़की दोनों को मैं बोल रही हूँ, जिनकी शादी होनी है या जो फ्रेंड करते हैं ना। अभी अगस्त आ रहा है, अगस्त में फ्रेंडशिप डे आ रहा है। अरे इसको फ्रेंड बनाओ, उसको फ्रेंड बनाओ, बेवकूफ़ी मत बनो। तुमको पता भी नहीं है तुम किसको फ्रेंड बना के लोगे और वो तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा। अगर तुम बोलते हो कि नहीं, मुझे परमेश्वर की ओर से जो है मुझे वही चाहिए, तो परमेश्वर तुम्हें, देखो वचन क्या बोलता है, जेम्स 1:17, एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबाव, कमिंग डाउन फ्रॉम द फादर ऑफ द हेवनली लाइट्स, हु डज नॉट चेंज लाइक शिफ्टिंग शैडोज। हालेलुया। हिंदी में पढ़ूंगी मैं, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है? अच्छा और बेस्ट गिफ्ट कहाँ से आता है? परमेश्वर की ओर से। तुम अपनी अक्कल लड़ाने जाओगे, गलत गधे को पकड़ लाओगे।
परमेश्वर के इसमें जाओगे तो परमेश्वर सुंदर कोई देगा, कोई अच्छा देगा। भले दिखने में अच्छा नहीं होगा पर हृदय में अच्छा होगा, तुम्हारा ख्याल रखने वाला होगा, अंत तक तुम्हारे साथ चलने वाला होगा। ऐसे ही चाहिए ना तुमको? हाँ, ये फ्रेंड्स भी ऐसे चाहिए ना कि जो मदद करने वाले, हमारे बहुत फालतू टाइम में हमारी मदद करने वाले लोग चाहिए ना। जब पैसा है तो कोई भी मदद करेगा, जब नहीं है तो कौन मदद करता है वो देखना ज़रूरी है। आज कल मेरे पास रॉयल्स रॉयस होगी और वो होगी, रॉयल्स रॉयस आने के बाद तो सारे लोग इधर उधर चिपकेंगे। तो सब पता है सबको कि यार ये मेरे रॉयल्स रॉयल्स देख कर आ रहे हैं। कल तक मेरे पास जब रॉयल्स रॉयस नहीं थी, बेंटली नहीं थी, तो कोई मुझे देखता नहीं था। आज मेरे रॉयल्स रॉयस, बेंटली, मेबैक देख के आज मेरे आगे पीछे दौड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो वो किस लिए दौड़ रहे हैं? तुम्हारी शान देखकर, तुम्हारा पैसा देखकर। आज अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और जो लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना, उनको मत छोड़ो, क्योंकि वो लोग तुम्हारे पैसों को नहीं देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? मराठी में बोल रही हूँ। बी केयरफुल। शादी के मामले को लेकर या फ्रेंडशिप भी बनाने में केयरफुल रहो। आजकल के लोग सिर्फ पैसा देखते हैं, नाम शोहरत देखते हैं। अगर नाम शोहरत नहीं है तुम कुछ भी नहीं हो। अब मराठी में बोल रही हूँ। याकूब की पुस्तक 1:17, जेम्स 1:17, याकूब 1:17, 1:17। प्रत्येक उत्तम व परिपूर्ण देणगी वरून येते, स्वर्गीय प्रकाश ज्याने निर्माण केला त्या पित्यापासून ती येते आणि जिच्यावर तारंगणाचा हालचालीचा काही परिणाम होत नाही अशा पित्यापासून ती देणगी येते। हालेलुया। प्रत्येक देणगी आणि दान मतलब अच्छा गिफ्ट बोल सकते हैं। कहाँ से आता है? परमेश्वर की ओर से और उस पिता से आता है जो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। हमारा जो पिता है वो जब आपको गिफ्ट देता है ना, उस गिफ्ट में कीड़े, अगर आपको मिठाई का बॉक्स दिया, चलो मान लो किसी ने आपको मिठाई का बॉक्स दिया, उस मिठाई के बॉक्स में कीड़े लगे होंगे, तो मिठाई को आप खाओगे, आप बोलोगे क्या दिया तो क्या दिया, बराबर कि नहीं? पर परमेश्वर जब देता है ना, तो मिठाई का बॉक्स जब आपको देगा ना, तो उसमें कीड़े वीड़े नहीं लगे होंगे, वो बेस्ट होगा। हालेलुया। वो देख के आप खुश हो जाओगे। वो ना परमेश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, उसको देख कर ही तुम खुश हो जाओगे भाई, बहुत बहुत खुश। ओके, सो फ्रेंडशिप करने के पहले, दोस्ती करने के पहले देखो कि मुझे इससे दोस्ती कर सकती हूँ या नहीं। अगर आपको नहीं लगता है किसी के साथ दोस्ती नहीं करनी है, दूर रहो। हाय हेलो तक रखो, दूर रहो। वो बात कर रहे, थोड़ा बहुत बात करो, दूर रहो। अगर आपको अंदर से शांति नहीं लग रही है तो। अगर आपको शांति लगती है, परमेश्वर बोल रहा है हाँ ये व्यक्ति ठीक है, तो उससे दोस्ती करो। ठीक है? आजकल तुम्हें पता नहीं जिससे दोस्ती करते हो वो लोग ड्रग्स में हैं, तुम्हें भी ड्रग्स के इसमें लेकर जाएंगे, चल तू भी काम कर हमारे साथ। ऐसे ही वो ग्रुप बढ़ाते हैं। और सिर्फ ड्रग्स के नहीं, गलत चीज़ों में भी आपको बहुत बहुत शातिर रहना है। दूसरा एक चीज़ मुझे बताना है आपको, 2 वचन हम देखेंगे। देखो, आपके माइंड को पता है कि सही चीज़ क्या करना है। ओके, एक्चुअली शिमशोन को पता था कि दलीला के साथ नहीं रहना है, पर क्या हो रहा था, वो मानसिक रूप से इतना कमज़ोर था कि वो दलीला को छोड़ नहीं पा रहा था। और ये तब होगा जब आपके उनके साथ शारीरिक संबंध बनेंगे। तब जब आपके शारीरिक संबंध बनते हैं या फ्रेंडशिप में, आपको वो लेवल पे आना है कि नहीं मुझे तोड़ना है तो मुझे तोड़ना है। कई बार पता है आपको, ये शारीरिक संबंध भी ना, आपको पता है एक लड़की है, वो परमेश्वर उसके पाप एक के बाद एक करके ये लड़के को बता रही थी। एक लड़का था, रियल है, एक के बाद परमेश्वर ने ये लड़के को वार्निंग दिया कि ये लड़की सही नहीं है, पर ये लड़के ने सोचा नहीं मुझे यही लड़की चाहिए, मैं उसी के पीछे भागूंगा। ये भागता रहा उसके पीछे। ये लड़की ने उसे एटीएम की तरह यूज़ किया
अब इसके एक एक पोल खुल रही थी ये लड़की की, क्योंकि परमेश्वर उसे दिखा रहा था कि अरे यार ये लड़की तेरे लिए है नहीं, जो लड़की मैंने तेरे लिए रखी है उसके साथ शादी कर, ये लड़की तेरे लिए नहीं है। और इस लड़की के पोल खुल रहे थे एक एक। अब ये लड़की ने क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए कि नहीं तू क्या कर रही है, तू गलत कर रही है। तब ये लड़की क्या करती थी पता है, इसको प्यार से इसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। जब इसके साथ शारीरिक संबंध ये लड़की के साथ बनाती थी तो ये लड़का उसने जो किए हुए पाप है वो भूल जाता था। वापस से परमेश्वर इसके झूठ सामने ला रहा था कि ये लड़की सही नहीं है, निकल यहाँ से, ये लड़की तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये लड़की उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, जब भी उसका पॉइंट मिलता था, जब भी उसके लूपहोल्स मिलते थे ये लड़के को, ये उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और ये लड़का भूल जाता था कि उसने क्या किया है। एक दिन ऐसा हुआ ना, ये लड़की ने उसे ऐसा फंसाया ना आगे आगे चलकर, तब इसकी आंखें खुल गई कि भाई आज इसने मुझे फंसा दिया है, मेरी लगा दी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो जब परमेश्वर तुम्हें बता रहा है ना तब उसी वक्त एक्शन लो। शिमशोन जो था ना उसको माइंड में पता था कि भाई मुझे दलीला को छोड़ना है, पर शरीर में कमजोर था। और ये कहाँ लिखा है देखो, मत्ती 26:41। आपण परीक्षेत, एक मिनिट ना, मत्ती 26:41, आपण परीक्षेत पडू नये। मत्तय 26:41, आपण परीक्षेत पडू नये म्हणून जागे राहा आणि प्रार्थना करीत राहा, यासाठी की तुम्ही मोहात पडू नये। जे योग्य आहे ते तुमचा आत्मा करी इच्छितो, पण तुमचे शरीर अशक्त आहे। कळलं? कभी कभी क्या, अब यीशु क्या, मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको क्या हुआ था। यीशु ने पतरस को क्या बोला, यीशु पकड़े जाने वाला था, ओके, और वो गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में गया और प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने के वक्त उसने पतरस और यूहन्ना को लेकर गया और उनको बोला कि तुम भी प्रेयर करो। और पतरस को इतनी नींद आ रही थी कि यीशु वापस आया प्रार्थना करके, तो यीशु ने बोला कि यार मैंने तुम्हें कहा ना प्रार्थना करने के लिए, तुम सो क्यों रहे हो। तब यीशु ने ये वचन दिया कि आत्मा तो चाहता है, मतलब मन तो चाहता है मुझे प्रार्थना करनी है, पर शरीर कमज़ोर है। और यही क्या हो रहा था, किसके साथ हो रहा था, शिमशोन के साथ। समझ में आ रहा है? मैथ्यू 26:41, मत्ती 26:41। हिंदी में पढ़ रही हो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। समझ में आ रहा है? तो कई बार इमोशनल अटैचमेंट, कितने भी कसरत वाले लोग होंगे, अगर खली भी कसरत वाला है पर अगर उसे इमोशनली लोगों को डिटैच करने नहीं आएगा ना, वो ऐसे किसी औरत के साथ रह सकता है जो उसकी वाट लगा सकती है। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, क्योंकि हम खली को जानते हैं इसलिए, ठीक है। शरीर में ताकतवर होने से कुछ नहीं होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। मानसिक रूप से इतनी ताकत होनी चाहिए कि जब परमेश्वर तुम्हें बोलता है वो छोड़, तो तुम्हें छोड़ने को आना चाहिए। तब उसके साथ चिपके मत रहो, वो आपका घात करेगी। और मुझे नहीं पता मैं किसके लिए बोल रही हूँ, पर अगर आपको फ्रेंडशिप करनी है, आपको दोस्ती करनी है, आपको शादी करनी है, परमेश्वर से पूछो कि क्या ये मेरे लिए सही लड़का है, सही लड़की है। और अगर वो कहता है कि हाँ है तो ही करो, अगर वो कहता है नहीं है तो मत करो। इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, मैथ्यू 26:41। एक ही वचन लेंगे एंड फिर हम बंद करेंगे। Watch and pray so that, Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. शरीर, आत्मा तो चाहता है कि मुझे इससे रिलेशन तोड़ना है, पर मेरा शरीर कमज़ोर है।
मैं शरीर से इससे छुटकारा नहीं पा सकता। समझ में आ रहा है? और अगर वो सब नहीं कर सकते तो ध्यान में रखो, जो जिसके साथ रह रहे हो, अगर वो सांप है तो वो आपको कभी ना कभी तो डसेगा। समझ में आ रहा है? आज इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि कुछ लोग, आपके आसपास के लोग अगर लॉयल नहीं हैं, दूर रहो उनसे। ओके, और एक वचन हम देखेंगे। कई बार भी ना क्या होता है, हमारे ना दो चीज़ होती है, माइंड और हमारा शरीर। आत्मा कभी स्ट्रॉन्ग है। तीन चीज़ होती है, आत्मा, प्राण और शरीर। शरीर क्या करता है? आत्मा से जो निकलता है वो माइंड सुनता है, माइंड जो बोलता है वो शरीर करता है। ओके, सुबह ब्रश करना है तो क्या करेगा? माइंड बोलेगा शरीर को जाके ब्रश कर, तो उठ के ब्रश करेगा। अगर आत्मा में तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है तो तुम्हारे आत्मा में कौन है? शैतान। तो शैतान कैसे विचार डालेगा? आपके मन में गलत विचार डालेगा। अगर गलत विचार डालेगा तो आपका शरीर भी जाके क्या करेगा? गलत चीज़ें करेगा, राइट? पर जब आपका उद्धार होता है, ओके, आपके पास अभी आदम और हवा ने पाप किया, इसलिए हर मनुष्य जो है वो पापी है। बट जब आपका उद्धार होता है, तब उद्धार होने के वक्त जब आप यीशु के उद्धार की प्रार्थना करते हो, और जब आप जिस टाइम पे उद्धार की प्रार्थना करते हो, तब यीशु आपके पाप क्षमा करता है। और आपके अंदर कौन देता है? आपके आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा आपके आत्मा के अंदर रहने के लिए आता है तो वो आपके आत्मा के अंदर सारी अशुद्धता साफ कर देता है। देखो, अगर इधर कीचड़ है, हाँ, और अगर आपके पास घर नहीं है, हाँ, और कोई आपको बोलता है कि ठीक है चल मैं तेरे को रूम देता हूँ, और इधर पूरा गंदा गिरा हुआ है, सब कीचड़ गिरा हुआ है, आपको लॉक खोल के वो रूम वाला बताता है ये रूम चलेगा क्या? आप आओगे इधर रहने को? नहीं आओगे ना, क्योंकि सब गंदा है कि नहीं रूम में। वैसे ही पवित्र आत्मा आपके पापी स्वभाव के अंदर रहने के लिए नहीं आएगा। इसलिए जब आप पापों की क्षमा मांगते हो परमेश्वर से कि परमेश्वर यीशु, मैं उद्धार की प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर, मेरे पापों का दंड तूने उठा लिया है, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरा उद्धार करता है यीशु, और तू मेरे जीवन में आ, तब आपके पाप क्षमा होते हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर आत्मा में रहने के लिए आता है, और आपका आत्मा क्या होता है? साफ होता है। अब आत्मा के द्वारा आपके आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा कौन से विचार डालेगा? आपके माइंड में अच्छे विचार डालेगा। और फिर भी आपको भी आपके माइंड को ट्रेनिंग देना है बाइबल पढ़ के, है, तो फिर आपका शरीर क्या करेगा? गंदे काम नहीं करेगा। अगर आप पहले चोरी करते थे तो पवित्र आत्मा आपको बोलेगा चोरी मत कर, चोरी मत कर, चोरी मत कर, तो माइंड में आपके क्या फिट होगा? चोरी नहीं करने, तो आपका शरीर चोरी नहीं करेगा। अगर चोरी करने भी जाएगा ना तो पवित्र आत्मा आपको रोकेगा। पवित्र आत्मा आपको रोकेगा कि नहीं, चोरी नहीं करनी है, ये गलत काम है। बट जब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो कौन राज कर रहा है? शैतान राज कर रहा है। शैतान गंदे विचार डालेगा। जब वो गंदे विचार डालता है तो शरीर क्या बोलेगा? अच्छा, मेरे को इंस्ट्रक्शन मिल गया, सिग्नल मिल गया मेरे को गंदे काम करने का, तो शरीर जाके गंदे काम करेगा। इसलिए एक वचन देख रहे हैं, गलातियों 5:17। इसलिए क्या करना है? देखो, आप जितना आपके आत्मा में, जब आप यीशु में आओगे, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा रहने के लिए। जितना आप बाइबल पढ़ोगे, जितना आप प्रार्थना करोगे, जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, आप पवित्र आत्मा में आप बढ़ते जाओगे। आपका आत्मा स्ट्रांग होगा, और जब आपका आत्मा स्ट्रांग होगा तो परमेश्वर आपको जो भी करने को बोलेगा आप आराम से कर पाओगे। अब क्या हो रहा है? अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं, शैतान है। आत्मा क्या है? आत्मा में ताकत नहीं है, तो परमेश्वर अगर बोलता भी है तो ताकत नहीं है वो काम करने की। यहाँ पे तो शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा था, तो भी उसने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया था कि उसे परमेश्वर की बात सुनना है, और इसीलिए उसने अपने आंखें गवाई और बाद में अपनी लाइफ भी गवाई। वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर था पहले से, बचपन से नाजरी था वो,
पर तुम पवित्र, देखो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अचानक से ऑटोमेटिकली तुम एकदम ये बन जाओगे, नहीं। तुम्हें भी अपने ऊपर आदत लगानी है कि मुझे परमेश्वर का ही सुनना है। आपके माइंड को आपको आदत लगानी है कि मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे बाइबल के अनुसार ही चलना है, तभी ये होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो लास्ट का वचन हम देखते हैं, आत्मा को हावी होने दो आपके माइंड से ज़्यादा। आपका मन जो है ना आपको कुछ भी बोलेगा, तो आत्मा, पवित्र आत्मा, आपका आत्मा अगर पवित्र आत्मा से भरा है तो गलत काम करने नहीं देगा, और आत्मा हावी होगा शरीर के ऊपर, और शरीर क्या करेगा? गलत काम नहीं करेगा। बट अगर आपका आत्मा कमज़ोर है, वीक है, तो आपका मन क्या है? स्ट्रांग है, तो मन में गंदे विचार आ सकते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा है ही नहीं, तो शरीर क्या करेगा? गलत काम करेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए पौलुस ने वचन में क्या लिखा है देखो, गलातियों में Galatians 5:17, for the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Okay? यहाँ पे जो वचन है जो मुझे देना था, walk in मराठीत गाणी ना नहीं, गलाती है। गलाती 5:16 5:16 पढ़ेंगे हम, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। Galatians 5:16, so I say walk by the spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Okay? मराठी में पढ़ रही हूँ, गलाती करांस एक मिनट। गलातीकरण 5:16, पण मी म्हणतो तुम्ही आत्म्यात चाला। आत्म्यामध्ये म्हणजे काय? पवित्र आत्म्यामध्ये, कळलं? पण मी म्हणतो तुम्ही आत्म्यात चाला आणि तुम्ही देहाची पापी इच्छा पूर्ण करणार नाही। देहाची पापी इच्छा काय होती शिमशोनची? दलीलाला सोडायला पाहिजे होतं ना त्याने, पण दलीलाला सोडलं नाही आणि दलीलाने त्याची वाट लावली। हिंदीमध्ये गलाती आहे, गलातियों 5:16, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आमीन। तो यहाँ पे एक ही चीज़ मैं बोल रही हूँ, अगर आपको आपके आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, प्रार्थना करना ज़रूरी है, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना ज़रूरी है, तभी आपका आत्मा स्ट्रॉन्ग होगा, वरना आपका आत्मा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और अगर आपका आत्मा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो शरीर के हर पाप, शरीर की जो लालसा है, शरीर की जो इच्छा है, वो हर पाप पूरा करते जाएगा और आप बाद में फंसोगे। अगला वचन जब आप शिमशोन का देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि शिमशोन की आंखें फूट गई, एंड में उसकी मिनिस्ट्री भी चली गई, वो मर गया। ठीक है? तो यहाँ से हमने क्या सीखा है कि हमें ऐसे लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना है जो लोग विश्वासघाती है, जो विश्वासघात करते हैं उनके साथ रिश्ता नहीं रखना है। विश्वासघात करणाऱ्या लोकांपासून दूर रहा। ओके? परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु कि आज तूने हमें सिखाया है कि हमें विश्वासघाती लोगों से दूर रहना है। तो परमेश्वर, अगर हमारे आजू बाजू में ऐसे कोई लोग हैं तो हमें दिखा
और हमें उनसे दूर रहने के लिए मदद कर प्रभु। अगर उनसे हमें फ्रेंडशिप भी तोड़नी पड़े तो हमें तोड़ने के लिए मदद कर प्रभु। हमें आत्मा में जीना है प्रभु, हमें शरीर में नहीं जीना है। जैसे शिमशोन कमज़ोर था, वो दलीला के साथ फ्रेंडशिप नहीं तोड़ना चाहता था क्योंकि वो शरीर में कमज़ोर था। परमेश्वर हमें शरीर में कमज़ोर नहीं होना है। जब तू कहता है इस व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप तोड़ या ये व्यक्ति के साथ रिश्ता मत रख, तो परमेश्वर हमें तेरा काम करना है और हमें उस व्यक्ति के साथ रिश्ता नहीं रखना है। तो परमेश्वर हमें मदद कर। मैं और भी एक चीज़ बोल रही हूँ, अगर कोई व्यक्ति है जिसने आपको फंसाया है बट आगे चल के उसे रियलाइज़ होता है कि उसने गलती की है और अगर वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आता है और वो सच में उसे बुरा लग रहा है कि भाई हाँ मैंने गलती की है, तो आप परमेश्वर उससे पूछ के उसे माफ़ कर सकते हो और उसके साथ वापस से रिश्ता बना सकते हो। पर अगर परमेश्वर आपको नहीं बोलता है कि नहीं करना है तो आप उसके साथ मत जाओ। अगर परमेश्वर कहता है कि ठीक है, हाँ ये सच में इसने हृदय से माफ़ी मांग रहा है, इसे क्षमा करो, तो उसे क्षमा करके अपने जीवन में ले सकते हो। ओके, सो परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। जितने भी लोग हैं ये वचन सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें डिसर्नमेंट का स्पिरिट दे प्रभु, उन्हें सही और गलत परखने का आत्मा दे प्रभु, कि ताकि ये लोगों के अंदर सही और गलत को पहचान सके प्रभु। इमोशनल इंटेलिजेंस से इनको भर प्रभु, इनको मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बना ताकि ये सही निर्णय ले सके और जो लोग इनके जीवन में सही नहीं हैं उन्हें कट कर सके प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, जो भी गलत लोग हैं जिनको इन्होंने ऐड करके रखा है अपने लाइफ में, वो उन्हें उनसे छुटकारा पाने के लिए मदद कर प्रभु। मैं मांगती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं कि ये वचन सुनने के बाद वो लोग अपने इंस्टा, फेसबुक, अलग अलग जो ऐप है जहाँ पे गलत लोगों को नहीं लेना चाहिए, वहाँ से वो लोग कट करने वाले हैं। इसके लिए परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे, कट करने के लिए परमेश्वर उन्हें बुद्धि ज्ञान से भर, उन्हें अनुग्रह दे। जो लोग सही नहीं है उनको कट करने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।